नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS design depends on its architecture. Basic client server architecture is used to deal with a large number of personal computers, web servers, database servers and other components that are connected with network. तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बहुत सारे पीसीज और वर्क स्टेशन कनेक्ट हो सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे जो कि डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टू टायर आर्किटेक्चर। इट इज़ लाइक अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जिसमें डेटाबेस सिस्टम एक्ट एज अ सर्वर एंड एप्लीकेशन एंड यूज़र एक्ट एज ए क्लाइंट। एप्लीकेशन यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट होता है। टू टायर आर्किटेक्चर एक बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के जैसा ही है एंड द यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होते हैं आपकी क्लाइंट साइड पे। सर्वर साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनलिटीज़ लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। कोई भी ट्रांजेक्शन है या फिर कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई क्वेरी आती तो वो सर्वर साइड से फुलफ़िल की जाती है। टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद द सर्वर साइड। द नेक्स्ट इज थ्री टायर आर्किटेक्चर. It is a very important architecture of database management system in which three levels are there. Number one, external level. Number two, conceptual level. And number three, internal level. And the schemes between these levels are called external schemes, external level and conceptual level. And the scheme on the conceptual level is called conceptual scheme, and the scheme on the internal level is called internal scheme. And the mapping between two levels like external and conceptual is called external conceptual mapping, and the mapping between conceptual and internal level is called conceptual or internal mapping. Three-tier architecture contains another layer between the client and server. In this architecture, client can't directly communicate with the server. टू-टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सर्वर से, बट थ्री-टायर आर्किटेक्चर में एक एक्स्ट्रा लेवल और ऐड कर दिया जाता है जिसकी वजह से यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है सर्वर से, बीच में एक इंटरमीडिएटरी लेवल और होता है। एंड यूज़र जिसे उस डेटाबेस जो उसका व्यू है उसके अलावा उसको कोई भी डेटाबेस नहीं दिखाया जाता है बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर, एंड द डेटाबेस सिस्टम ऑल्सो हैज़ नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूज़र बियॉन्ड द एप्लीकेशन। इसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। द थ्री टायर आर्किटेक्चर इज़ यूज्ड in case of the large web application. The three schema architecture is also used to separate the user applications and physical database, which is the most important feature of database management system over the flat file system. Here the user applications and physical database separately resides on memory. So the changes in physical database can't reflect the user application, or we have to change only in physical database and the user application will automatically compete with this. The three schema architecture contains three levels. It breaks the database down into three different categories. Number one, internal level. The internal level has an internal scheme which describes the physical storage structure of database. How the database will stored. It will be decided on internal level. इसे physical scheme भी कहा जाता है. It uses the physical data model. डेटा कैसे स्टोर होगा, कितना स्टोरेज लगेगा, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ ब्लॉक. द फिजिकल लेवल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल. द नेक्स्ट लेवल इज कॉन्सेप्चुअल लेवल.
यहाँ पर डेटाबेस की डिज़ाइन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिस्क्राइब की जाती है। इसे लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है कि डेटाबेस कैसा होगा, व्हाट विल बी द डेटाबेस और व्हाट इंफॉर्मेशन इट विल स्टोर। द कॉन्सेप्चुअल स्कीम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस. The conceptual level describe what data are to be stored in the database and also describe the relationship among those data. Like student and faculty दो रिलेशन है, तो दो रिलेशन या दो टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं, उनकी साइज़ क्या होगी, डेटा टाइप क्या होगा, ये सभी कुछ, और उनके बीच की रिलेशनशिप कैसी होगी, उनमें अगर कोई फॉरेन की एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है, किससे प्राइमरी की बनाना है, ये सभी कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिसाइड होता है, डिस्क्राइब किया जाता है. इन द कॉन्सेप्चुअल लेवल इंटरनल डिटेल्स सच एज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर हिडन. कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सिर्फ व्हाट डेटा टू बी स्टोर्ड विल बी डिसाइडेड, बट हाउ डेटा विल स्टोर it is not defined at this level. Programmers and database administrators work at this level. The third level, which is external level. External level पे database several schemes रखता है, जैसे कि सब स्कीम, जिसे हम सब स्कीम्स भी कहते हैं. The sub scheme is used to describe the different view of database. जैसे कोई बैंक का डेटाबेस हो तो मैनेजर के लिए व्यू डिफरेंट होगा, क्लाइंट के लिए व्यू डिफरेंट होगा, और जो वहाँ पे क्लैरिकल स्टाफ है, उनको कौन सा डेटाबेस व्यू होना है. तो यूज़र लेवल पे आपके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं. फॉर द सिक्योरिटी रीज़न एन एक्सटर्नल स्कीम इज़ ऑल्सो नोन एज व्यू स्कीम. Each view scheme describes the database part that a particular user group is interested and hides the remaining database from that user group. जैसे कि कोई किसी का अकाउंट है तो उसको सिर्फ अपने पर्सनल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी एक्सटर्नल लेवल पे, और उसको अदर एम्प्लॉयज़ की या अदर कस्टमर्स की डिटेल हिडन रहेगी. द व्यू स्कीम डिस्क्राइब्स the end user interaction with database system. Thank you.